Hello students, I am Vijit Gambhir, PGT Chemistry, KV Dogra Lines Meerut. In the previous video, we discussed about valence bond theory and its limitation. So to overcome the limitations of valence bond theory, a theory was given, crystal field theory, by two scientists, Hans Bethe and John Van Leck. So this was the theory given by two scientists, crystal field theory. So in this video we will discuss about crystal field theory in octahedral compounds and in tetrahedral compounds. Crystal field theory in square planar compounds is not in our syllabus, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन दो को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके assumptions की, इसके postulates की जो इस theory में दिए गए थे. What were the assumptions or postulates of this theory? So the first assumption was of this CFT, this crystal field theory, was that the central metal is a cation. It acts as a cation. तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर वो एक पॉजिटिव आयन है तो वो एक कटायन की तरह काम करेगा. उसने कहा कि ये कटायन है, तो अगर हम लिगेंड्स की बात करते हैं, लिगेंड्स आर द नेगेटिव आयंस. Ligands are the negative ions. Why? Because they have negative charge or they have the lone pairs which are attracting towards or which are attacking towards the metal. तो उसके अकॉर्डिंग जो लिगेंड्स हैं वो नेगेटिव आयंस हैं. इसने इनको पॉइंट चार्जेस भी बोला कि ये कुछ पॉइंट चार्जेस हैं which are present around the metal. So ligands were considered as anions. Metal was considered as cation. So according to this theory, the bond between the metal and ligand was not coordination bond, it was not a coordinate bond or covalent bond, but it is an ionic bond or electrostatic bond. So इस theory ने जो कंसेप्ट था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया. पिछली थ्योरी तक हम क्या पढ़ते आए, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कोऑर्डिनेशन, बट इन दिस थ्योरी हम क्या पढ़ रहे हैं, द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज आयनिक. और उसका कंसेप्ट क्या था, व्हाट वाज द कंसेप्ट, बिकॉज द मेटल इज अ कैटायन एंड द लिगेंड इज anion, and the bond between a cation and and an anion is always an ionic bond. So this was the concept. And if the bond is ionic, the ionic compound is a type of crystalline solid. We have studied in chapter 1 in solid state. तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप होता है, आयनिक सॉलिड जो है उसका एक टाइप होता है. that's why the name was given as crystal field theory. तो ये जो क्रिस्टल नाम है वो इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं माना. they considered these compound as ionic compound, not the coordination compound. So this was the concept of crystal field theory. ये उसने concept बिल्कुल change कर दिया, उन पिछली theory से बिल्कुल अलग दिया था. तो ये थे इसके दो point जो CFT के हम assumptions पढ़ेंगे. Before going to the third point, I have to show some geometries of the d orbitals. क्योंकि मैं जब तक d orbitals हम लोग जब तक उसको समझेंगे नहीं, d orbitals की shape कैसी होती है, तब तक हम third point को clearly नहीं समझ पाएंगे. I think all of you have studied about the shapes of d orbitals in class 11. हम उसको जरा सा एक और बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाए. We have discussed about this structure and this is octahedral geometry. अब मैंने इसमें कुछ एक्सेस को भी डिनोट किया है. this axis is x axis. okay, this axis is x axis. what about this axis? this is y axis जो आपको वर्टिकल दिख रही है. और ये जो एक्सिस है इसको मैंने नाम दिया है z axis. ओके, एंड these three are perpendicular to each other. ये आपको क्लियर है, x axis, y axis and z axis, these are perpendicular to each other. now what about the d orbitals? अब आप जानते हैं d orbitals जो होते हैं, एक d सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d orbitals होते हैं. तो उनकी शेप कैसी होती है और उनके नाम क्या क्या हैं. तो मैं बात करता हूँ dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल की पहले बात करता हूँ. ये तीन ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है. वी नो दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस. तो अब मैं पहले बात करता हूँ dxy की. सी this is the x axis, this is y axis. so the lobes of the dx orbital are present in between the axis.
ये जो लोब्स हैं ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डी एक्स वाई के लोब्स हैं वो ना तो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं ना ही वो वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, सो दैट मींस दे आर इन बिटवीन द एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ डी वाई जेड ऑर्बिटल की। तो डी वाई जेड ऑर्बिटल जो है, वाई ऑर्बिटल वर्टिकल एक्सिस, जेड ऑर्बिटल यहाँ, तो मैं इसको अगर शो करूंगा तो ये ऐसे करके आ जाएंगे, दिस इज वाई ऑर्बिटल एंड जेड ऑर्बिटल। वाई और जेड ऑर्बिटल हमारे पास एक्सिस यहाँ आ गए, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अब यहाँ डी वाई जेड जो ऑर्बिटल होगा उसके लोब्स इसके बीच में प्रेजेंट होंगे। सो अगेन द लोब्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस एज वेल एज ऑन जेड एक्सिस, वो वहां पर नहीं है। सिमिलरली डी जेड एक्स की बात करें तो डी जेड और डी एक्स अगर मैं देखूं तो ये जेड ऑर्बिटल हो गया हमारा और जेड एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो जो डी जेड एक्स ऑर्बिटल है उसके लोब्स भी इन एक्सिस के बीच में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से एक भी एक्स जो ऑर्बिटल है वो एक्सिस पर नहीं होता है। सो ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस, मैं प्लूरल में लिख रहा हूँ ए एक्स ई एस, तो ये एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द अदर टू ऑर्बिटल्स? द अदर टू ऑर्बिटल्स आर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। तो एग्जैक्टली ये उनको ओवरलैप करता है, मतलब ये एक्स और वाई एक्सिस पर ही यहाँ ऐसे प्रेजेंट होता है। तो अभी तक जो ऑर्बिटल्स थे वो इस तरह से थे और ये जो ऑर्बिटल है वो कुछ इस तरह से है, वो एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वी कैन से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर? यस, डी जेड स्क्वायर हैज ओनली सिंगल लोब, उसके पास एक ही एक्सिस में लोब होते हैं और एक रिंग होती है जो हमने पढ़ा भी है 11th क्लास में कि उसके पास एक रिंग होती है एंड दिस orbital is present on the z axis while x and y axis they have this ring। तो इसकी जो शेप है कुछ इस तरह से है, मैं z axis पर इसको ला रहा हूँ, ये z axis पर ये जो है ऑर्बिटल दिख रहा है आपको और x y axis पर इसकी रिंग दिख रही है। सो दैट मीन्स दिस ऑर्बिटल इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ये भी एक्सिस पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये अलोंग द एक्सिस हैं। तो अब मैंने इन 5 ऑर्बिटल्स को डी के जो डी सबशेल के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आई हैव डिवाइडेड दीज ऑर्बिटल्स इनटू 2 कैटेगरी। वन इन बिटवीन द एक्सिस, सेकंड अलोंग द एक्सिस। तो हमारा जो आगे कंसेप्ट चलेगा वो इस बेस पर चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस और 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं। अब जो मैं बात कर रहा था थर्ड पॉइंट की, पहले 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, मेटल कटायन ligand anion and the bond between metal and ligand is not a coordinate, it's an ionic bond। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा? नेक्स्ट इन्होंने कहा कि द 5 जो मेटल के पास 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 5 उसके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर डीजेनरेट, दे आर डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स उन सबकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो भी एक सबशेल होता है उसके सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम उनको एक सबशेल के ऑर्बिटल्स कहते हैं। इफ दे विल हैव डिफरेंट एनर्जी दे विल बिलोंग टू डिफरेंट सबशेल्स। तो एक डी ऑर्बिटल के फॉर एग्जांपल इफ इट इज 3d, so all the 5 orbitals of d they will have same energy and they are called degenerate orbitals। कब तक? जब तक उन पर लिगेंड अप्रोच नहीं करता, जब तक लिगेंड उनके बिल्कुल पास में नहीं आ जाता। अब जब लिगेंड उनके पास आ जाता है, when the ligand approaches the metal, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। और 2 पार्ट में क्यों स्प्लिट हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड की जो डी ऑर्बिटल्स की शेप है वो हमने पहले ही पढ़ लिया, वो बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस है। अब वो 2 पार्ट में डिवाइड क्यों हुए? क्योंकि जो लिगेंड है हमारे पास, वो या तो आ सकता है अलोंग द एक्सिस या वो आएगा बिटवीन द एक्सिस। ऐसा क्यों? एक ही तरफ से क्यों आता है? इफ इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो हम जानते हैं, हम इसको आगे भी समझेंगे, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे लिगेंड्स, ऑल द 6 लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस।
while in tetrahedral geometry all the ligands are present in between the axis, so they will come either on the axis or between the axis. हम दो ही केस पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगर सब ligands along the axis आएंगे तो वो along the axis के क्लोज होंगे, अगर between the axis आएंगे तो वो between the axis के क्लोज होंगे, तो वो किसी एक के पास होंगे, एक के दूर होंगे, and on the basis of that these 5 orbitals, these 5 d orbitals will split into two parts, and these two parts are called T2g और T2, इनको दो नाम दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे इनको ऐसे नाम क्यों दिए गए हैं। एंड द टू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड E-G और E ऑर्बिटल्स। तो जो तीन ऑर्बिटल का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं T2g या T2 ऑर्बिटल, और जो दो ऑर्बिटल का ग्रुप है उसको हम E-G या E ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं दे स्प्लिट इनटू, जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका यही मेन यहाँ पर उसने बताया कि दे स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स ऑफ 3 ऑर्बिटल्स एंड 2 ऑर्बिटल्स। एंड रिमेंबर दिस थिंग, this theory explained about the splitting of only d orbitals. There is no explanation about the splitting of s and p orbitals. VBT ने क्या कहा था? VBT explained that d orbitals as well as the s and p orbitals that involved in the bonding with the ligands, d के साथ में s और p in each hybridization, if it is D2sp3, sp3d2, dsp2, sp3, in all s and p orbitals are also involved, वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे। बट यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसमें s और p orbitals के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। मैं दूसरी बात बता दूं कि इस थ्योरी की हेल्प से हम यहाँ कोई हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम यहाँ से कोई ज्योमेट्री फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये फाइंड आउट करेंगे कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली में कैसे पुश हो जाते हैं। हमने जैसे वहां पढ़ा था कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो अंदर पुश हो जाते हैं और वीक लिगेंड में पुश नहीं होते हैं। तो बस इसने इस चीज को एक्सप्लेन किया, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दीज वर द एजम्पशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में। अब हमने जैसे कहा कि हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दो कॉम्प्लेक्सेस में, वन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकेंड वन इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब इट हैज 6 लिगेंड, इसके पास 6 लिगेंड हैं। तो अब 6 लिगेंड है तो मैं भी बात कर रहा हूँ मेटल की। मेटल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने ऐसे बनाया, आप चाहें तो नॉर्मल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये मेटल है, ये मेरे पास सेंट्रल मेटल है जो बीच में आपको दिख रहा है। अब इसके पास लिगेंड्स जो हैं वो आ रहे हैं, इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो सब जगह हैं, दे आर इन बिटवीन द एक्सिस एज वेल एज अलोंग द एक्सिस, वो हर जगह प्रेजेंट है। सपोज कीजिए दीज लिगेंड्स आर नॉट प्रेजेंट विद द मेटल्स, अभी उसके पास कोई लिगेंड नहीं है, सो इट हैज ऑर्बिटल्स इन बिटवीन एज वेल एज अलोंग द एक्सिस। तो अब क्या होगा, जब लिगेंड मेटल के जब पास आने लगता है, it increases the repulsion between the ligand electrons and the metal electrons। उनके बीच में एक रिपल्शन होती है और सभी जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, जो मेटल के सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है। व्हाई? बिकॉज रिपल्शन इंक्रीजेस द एनर्जी, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होती है, तो मेटल के जितने जो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑर्बिटल्स हैं, वो सब हाई एनर्जी में चले जाते हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई, हमने तो कहा था वो स्प्लिट होते हैं। अब स्प्लिट कैसे होंगे? व्हेन द लिगेंड विल डिसाइड दैट कि उन्हें दे हैव टू कम ऑन अलोंग द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस, वो डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ आना है, अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यू कैन सी all the 6 ligands are present along the axis, कोई भी ligand between the axis नहीं है। These are 6 ligands, 1 2 3 4 5 6, ये सब ligands हैं जो axis पर ही present हैं।
ये इनमें से कोई भी लिगेंड बिटवीन द एक्सेस नहीं है। अब जब आप ड्रॉ करते हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को तो आप देखते हैं कि आप स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये एक्सेस पर है, तो हम सोचेंगे नहीं, ये तो एक्सेस पर नहीं है, बट एक्चुअली दे आर ऑन द एक्सेस। हम इसको बस अपने थोड़ा सही समझने के लिए हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही है, हम इसको थोड़ा समझने के लिए इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं जिससे ये स्क्वायर बाइपिरामिडल हमें देखने लगता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सभी लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस आते हैं। ऑल द लिगेंड्स दे अप्रोच द मेटल अलोंग द एक्सिस। अब बात ये है कि अगर लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो जो लिगेंड्स हैं वो पहले तक तो डिसाइड नहीं कर रहे थे, अब वो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो इन दो ऑर्बिटल्स के ज्यादा क्लोज चले जाएंगे और उन तीन ऑर्बिटल से उनका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? इफ द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द मेटल along the axis, so the orbitals which are present along the axis, they will come close to the orbitals of ligands, so there will be an increase in the energy of the metal orbitals which are present along the axis because of the repulsion with the ligand electrons. So only two orbitals will get repulsion, will feel repulsion, so these two orbitals will be of higher energy after the approach of this ligand, and three orbitals which are present in between the axis, they will feel less repulsion and their energy will decrease। अब उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब जो लिगेंड है वो वहां से थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस आपको ध्यान रखना है कि इसकी एनर्जी सबसे कम रखनी है, यहाँ एनर्जी थोड़ा सा इससे हायर ही रखनी है। अब ये जो दो ऑर्बिटल और तीन ऑर्बिटल हैं, they were named as T2G and EG. The three orbital set is called T2G, where G is called gyrate, इसको gyrate बोला जाता है, and EG जो तीन ऑर्बिटल का सेट है इसे T2 बोलते हैं, G is for gyrate। अब gyrate क्या होता है? gyrate का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? आपको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री मीन्स मेटल it has a ligand in plus x coordinate, तो उतनी ही डिस्टेंस पर माइनस एक्स कोऑर्डिनेट पर एक लिगेंड होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इफ द मेटल हैज अ लिगेंड इन द y एक्सिस इन प्लस कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट, so it has a ligand in the y minus y coordinate on the same axis, at the same distance, sorry। तो प्लस y में भी अगर उसके पास एक लिगेंड है तो माइनस y में लिगेंड है सेम डिस्टेंस पर। सिमिलरली plus z and minus z coordinates, they also have ligand at the same distances, so that is called center of symmetry। so इसको जो है हम g से डिनोट कर रहे हैं, तो that means it has a center of symmetry। तो ये जो है इस तरह से हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई है। these five orbitals they get split into two set of EG and T2G। okay, and this part of the energy is called the barycenter, जहां से वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जहां पर अभी वो जिससे डिवाइड हुए हैं, दैट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द barycenter। एंड नाउ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस EG एंड T2G लेवल इज कॉल्ड crystal field splitting energy। This is called crystal field splitting energy or it is denoted as delta। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसमें O लगा देता हूं तो दैट मीन्स crystal field splitting energy of octahedral complexes, and this is very important definition for board exams। what is the CFSE? you have to write the definition, the energy difference between the EG level and the T2G level in octahedral complexes। और हम टेट्राहेड्रल में भी इसको समझेंगे इसकी डेफिनेशन को। तो दैट एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा O। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी इंक्रीज और कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है, वो एनर्जी इक्वल होती है। दैट मीन्स द इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी। इंक्रीज कितने ऑर्बिटल्स में हुई है? 2। डिक्रीज कितने ऑर्बिटल्स में हुई है? 3। तो हम उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। नीचे कितने ऑर्बिटल्स गए हैं? 3 आउट ऑफ 5। so that means 3/5 orbitals are below the barycenter, while 2/5 orbitals they are above the barycenter, so they will get 3/5 increase of energy, they will get 3/5 increase in energy, and they will get 2/5 increase in energy।
तो इसे हम 3/5 डेल्टा O एंड 2/5 डेल्टा O कहते हैं। ये माइनस में रहती है वैल्यू क्योंकि ये डिक्रीज हुई है, तो हम इसे माइनस भी लिख सकते हैं। हम इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये भी हमारे हायर लेवल का जो है टॉपिक है। 3/5 2/5 दो ऑर्बिटल, अगर मैं कहूँ कि 3/5 क्यों आया, मल्टीप्लाई विद दिस टू ऑर्बिटल्स, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 6/5, 2 orbitals 3 orbitals multiply by 2/5 that will be 6/5, so the increase in energy is equal to decrease in energy। एक बार जब लिगेंड मेटल को अप्रोच कर लेते हैं तो जो इंक्रीज हो जाती है उसके बाद कोई इंक्रीज नहीं होती। आफ्टर दैट लिगेंड डिसाइड्स whether it has to come along the axis or between the axis, so the increase and decrease in energy जो होती है वो वहां पर डिवाइड हो जाती है, बट देयर इज अगेन नो इंक्रीज इन एनर्जी फर्दर, ठीक है, वहां पर और ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है उसकी एनर्जी में। सो दैट इज द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो यहाँ पर एनर्जी में इंक्रीज होता है। सो अ मेटल, एक मेटल जो है वो लिगेंड जो होते हैं वो मेटल के ऑर्बिटल्स को वहां पर डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। सो दैट इज द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ हमने एक चीज देखी है, देखनी है, वो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। सॉरी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ये क्या होते हैं हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके बेस पर ही हम यहाँ पर समझेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेस पर हम यहाँ पर समझेंगे कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है उसको हम समझेंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सी वी हैव सपोज 5 ऑर्बिटल्स, हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं। तो अब 5 ऑर्बिटल को मैंने ये बनाया है बेरी सेंटर पे, 5 ऑर्बिटल्स एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, बेरी सेंटर है। अब लिगेंड्स जो आ रहे हैं वो स्प्लिट कर रहे हैं इन 5 ऑर्बिटल्स को इन द 2 पार्ट्स T2G एंड EG। तो अब जो 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, अगर if that ligand is a very strong ligand, okay, if that ligand is a strong ligand, ठीक, that means and that ligand can split these 5 orbitals with very high value of delta O, crystal field splitting energy बहुत ज्यादा होगी। और अगर मैं बात करूं कि अब वो एक weak ligand है, if that ligand is a weak ligand, that means that has very less power to split these 5 orbitals in 2 parts, वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की कम टेंडेंसी रखता है क्योंकि ये वीक लिगेंड है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था, वीक लिगेंड मींस विच हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉन्ड में जाने के लिए कम डोनेट करता है, उसे हम कहते हैं वीक लिगेंड। अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर नहीं पार्टिसिपेट कराना चाहता, वीक लिगेंड। सो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दिस इज अ वीक लिगेंड एंड द डेल्टा ओ वैल्यू इज लाइक दिस, डेल्टा ओ वैल्यू जो है वो इतनी है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स, और इसमें जो स्प्लिटिंग हो रही है वो इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ डेल्टा ओ वैल्यू कुछ इस तरह से है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वीक लिगेंड एंड द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वीक लिगेंड वी गेट हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखते हैं, उससे हम समझ जाएंगे। इन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वी गेट लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इस तरह से ये बनता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एंड दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसने कहीं भी क्लियर नहीं किया था कि on what basis we can say that this is a strong ligand, this is weak ligand. In some cases strong ligand behaves like a weak behaves like a strong. तो इसने ये क्लियर किया कि splitting decides whether that ligand is a strong ligand or the weak ligand. तो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर सपोज कीजिए इस मेटल के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, दैट मेटल हैज सपोज D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो मुझे यहाँ फिल करना है इन D4 और इलेक्ट्रॉन्स को, D में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, स्प्लिटिंग के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, हमें ये इसको बताना है। So in case of weak ligand that means that delta O value is very less, delta O value बहुत कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वैल्यू बहुत कम होगी तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो चलिए हम नीचे भेजेंगे। इन केस ऑफ दिस अगेन वी हैव D4, 3 इलेक्ट्रॉन वो तो नीचे जाएंगे ही। द फैक्ट इज फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पर केस है वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा,
Fourth electron in case of weak ligand will jump to the higher orbital, that is to Eg, because the delta O value is very less. वो आराम से ऊपर जंप कर सकता है, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा. But in case of strong ligand, you can see the difference between T2G and Eg, that is the delta O value is very high, so that electron cannot jump to the higher level. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही रह जाएगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आएगा. सो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड. So weak ligand, now you can see we have 1, 2, 3, 4 unpaired electron, so that's why it is high spin complex. And in case of strong ligand, we have only 2 unpaired electrons in these orbitals and these are paired electrons. तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अंदर पुश हो गए, जिस तरह से हमने वीवीटी में पढ़ा था. स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो अंदर पुश कर देगा, बट वीक अंदर पुश नहीं कर पाएगा. अब यहाँ एक चीज जो हमें और पूछी जाती है वो क्या है, comparison of delta O and pairing energy. This P is pairing energy, delta O and pairing energy. तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है. इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जंप कर रहा है, उसके लिए जो वो एनर्जी को यूज करेगा, दैट एनर्जी इज डेल्टा O. दिस एनर्जी इज डेल्टा O. If that electron will pair up with the electron, then in that case that electron will use pairing energy. तो वो कहीं ना कहीं एक जगह एनर्जी यूज करेगा, खर्च करेगा अपने ऑर्बिटल में जाने के लिए. तो वो कौन सी एनर्जी यूज करेगा, जहां पे वो कम एनर्जी यूज करके बैठ सकता है, वो वहां पर ऑर्बिटल में जा सकता है. सो इफ द डेल्टा O वैल्यू इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी, if the delta O value is less than the pairing energy, that electron will jump to the Eg level और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा. In this case, it is very clear that delta O value is very high. Delta O value pairing energy से बहुत ज़्यादा है. So that means the electron will not use this delta O energy. It will use its pairing energy और ये इस ऑर्बिटल में यहाँ नीचे पेयर कर लेगा. तो हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस बेसिस पर पूछा जाता है. तो ध्यान रखिएगा कि हमें क्या क्वेश्चन आएगा कि फॉर डेल्टा O लेस देन P राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg. अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है एग्जाम में, तो हम बताएंगे क्या, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3. सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज T2G 3 एंड Eg 1 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, T2G4 and Eg 0. So it has 4 electrons in T2G and 0 electron in E. Okay, Eg. So this is the configuration of T2G and Eg. तो हमने यहाँ पर देखा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और इसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं. इसी तरह से मैं D4 से D5 में भी जा सकता हूँ. मैं 5th इलेक्ट्रॉन को अगर फिल कर दूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ. तो आपका जो होमवर्क है, आपको जो करके दिखाना है वो D5 और D6 इलेक्ट्रॉन्स को इनमें फिल करके दिखाना है कि हम कैसे D5 और D6 को हम डेल्टा O लेस देन P एंड डेल्टा O मोर देन P में हम इनके लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg. ये आपने खुद से असेसमेंट जिसको करना है कि हम कैसे फिल कर सकते हैं D5 एंड D6 के केस में. ओके, नाउ कम टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब अभी हमने पढ़ा कि लिगेंड दो टाइप के होते हैं, एक वीक लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड. सपोज वी हैव 5 ऑर्बिटल्स, 5 d orbitals. A weak ligand splits it into 2 parts. Strong also splits into 2 parts. The difference is the delta O value. So a ligand with the lowest delta O value is placed in the left hand side of the spectrochemical series or at the one end of the spectrochemical series, and with increase of delta O value we are arranging all the ligands, then that series is called spectrochemical series. I'm again explaining. When we arrange all the ligands in the increasing order of their delta O value, then that series is called spectrochemical series. Or we can say when we arrange ligands in increasing order of their strength, then that is called spectrochemical series. So for example, I negative is placed in the last of the spectrochemical series because it has the least capacity or least power to split these 5 orbitals into 2 parts. सबसे कम एनर्जी होती है इसमें डेल्टा O वैल्यू. Then we have Br negative and SCl negative, and then Cl negative, F negative. Okay,
and the right hand side we have water, NH3, En, and then we have Cn negative, then we have CO. So these are the ligands which are arranged. और भी बहुत सारे हैं. This is a spectrochemical series जहाँ पर हमने सब ligands को arrange किया है in the increasing order of their delta O value or their strength. So this is about octahedral complexes. Now we will come to tetrahedral complexes. In tetrahedral complexes, the case is inverse. We have again 5 orbitals. When the ligands will approach the metal, their energy will increase. Again, same, their energy will increase. But what will happen when the ligand will decides its position, its direction? So in case of tetrahedral complexes, all the ligands they approach the metal between the axis. All the ligands they approach the metal between the axis. This is a tetrahedral complex. You can see ये एक tetrahedral complex है, आपने इसको देखा हुआ है. तो tetrahedral complex की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो ligands होते हैं वो इन बिटवीन हैं या एक्सेस पर हैं. तो जनरली हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं. Okay, but the actual structure is like this. Actual structure is like this, and no ligand is on the axis. No ligand is along the axis. कोई भी axis पर नहीं होता. यहाँ सब between the axis होते हैं. ओके इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं. आप अपनी नोटबुक में एक क्यूब ड्रॉ कीजिए. अपनी नोटबुक में क्यूब ड्रॉ कीजिए. इसके सेंटर में, इसके बॉडी सेंटर में आप सेंट्रल मेटल एटम को, उसके आयन को यहाँ ड्रॉ कर दीजिए. और जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, सॉरी अल्टरनेट कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर आप एलिमेंट्स जो लिगेंड्स हैं उनको ड्रॉ कीजिए. जो अल्टरनेट कॉर्नर्स हैं उनको ड्रॉ कीजिए और अब इनको ज्वाइन कीजिए. यू विल गेट अ स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इसको आप ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. एंड अब मैं अगर एक्सिस की बात करूं, these are the 3 axes where no ligand is present along the axis. इनमें से कोई भी ligand along the axis नहीं होता. इसको आप बना के ऑब्जर्व कीजिएगा. यहाँ पर कोई भी ligand along the axis नहीं होता है, वो सब between the axis होते हैं. So that means again we know there are 3 orbitals which are between the axis and there are 2 orbitals which are along the axis. 3 और 2 का हमने सेट बताया था, हमने पढ़ा था इस बारे में. So out of 5 orbitals, now 3 orbitals will be of higher energy because now the ligands are approaching the tetrahedral, the metal between the axis. तो वो एक्सिस के बीच में आ रहे हैं. So 3 orbitals they will feel more repulsion. उनको ligand से ज़्यादा repulsion feel होगी और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. और अगर हम बात करें उन 2 ऑर्बिटल्स की, तो वो 2 ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे विल फील लेस रिपल्शन नाउ. सो अगेन वी हैव दिस इज बेरी सेंटर, this is very center. Again we have these 3 orbitals as the name T2 and now E, but they are not termed as G. हमने इसको T2G और EG नहीं कहेंगे हम इसे, हम कहेंगे T2 and EY because they are not gyrate. They don't have any center of symmetry. Center of symmetry का मतलब क्या है? If the one ligand is present here, there is no ligand in the opposite side. If one ligand is here, there is no ligand in the opposite side. तो यहाँ center of symmetry नहीं होती है. यहाँ पर ये हम इसलिए इसे G से डिनोट नहीं करते हैं. Again the difference between T2 and E level is called CFSE, or it is termed as delta T. Now this is delta T, crystal field splitting energy in tetrahedral complexes. So this is the case of tetrahedral complex. Again the increase in energy and decrease in energy from the barycenter, it remains same. And for 3 orbitals the energy increase will be 2/5 for each orbital and 3/5 for 2 orbital decrease. So यहाँ पर जो decrease होगा वो 3/5 होगा for each orbital. So this is the case of tetrahedral complex. तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर होता है कि किस तरह से splitting होती है ligand की presence में. अब मैं बात करता हूँ यहाँ हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था. In tetrahedral complexes we see that the delta O value, this delta O value is always
has a low value. This delta T value always has a low value. जो crystal field splitting energy होती है ये कम होती है. When I will compare this value delta T with the delta O for the same ligand, the value will be almost half. This is actually 4/9 of delta O. मैं अगर इसे 4/8 बोलूँ तो that means half of delta O. तो ये हाफ या उससे भी कम वैल्यू होती है. तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जो CFSE वैल्यू है वो कम है. If this value is low, if this value is less, that if this energy difference is less, that means electron, suppose again we have D4, the electron will jump to the higher level. D4 means again we have 4 electrons. 1 electron, 2 electron, 3 electron will go to the T2 level. Okay, sorry, here we have 3 orbitals in the upper side and 2 orbitals in the lower side in tetrahedral complexes. Sorry, so we have 2 orbitals in the lower side. So 2 electrons will join the E orbital, E set, और जो T2 सेट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे. यहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रॉन अंदर पुश नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज द डेल्टा ओ टी वैल्यू इज ऑलवेज लेस. यहाँ पर डेल्टा टी वैल्यू हमेशा डेल्टा ओ से कम होती है. इसके रीजंस भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं सिंपल आपको यहाँ समझा सकता हूँ. डेल्टा टी वैल्यू डेल्टा ओ से कम इसलिए होती है बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वी हैव ओनली 4 ligands, while in octahedral complexes there are total 6 ligands. So if 4 ligands will approach the metal, there will be less splitting. If 6 ligands are approaching the metal, there will be more splitting. So that's why this delta O is higher than delta T. And there are some other reasons. The charge of the metal that also decides this value. वो भी इसको decide करता है. Generally in octahedral complexes we have higher charge. पर ऐसा compulsory नहीं है, वो उनमें भी हो सकता है. बट ये लिगेंड जो का जो कंसेप्ट है इस वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा ओ वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है. सो दिस इज द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो इस पर एक जो क्वेश्चन आता है वो आपको ध्यान रखना है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, अब मैं बात करूंगा ये हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, लो स्पिन या हाई स्पिन. सी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड देन फोर्थ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं. दैट मीन्स वी हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. So it forms always high spin complexes and that was not explained by VBT. इसने हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ये हमेशा इसमें आएंगे. सो क्यों बनाता है? बिकॉज द डेल्टा ओ डेल्टा टी वैल्यू इज लेस इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो ये हमारे पास केस आता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का. तो आपको ध्यान रखना है ऑक्टा और टेट्राहेड्रल में कंफ्यूज नहीं होना है. ऑक्टा और टेट्राहेड्रल में कितने कितने ऑर्बिटल्स नीचे होंगे. मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक भी बता देता हूँ. देखिए यहाँ पर क्या है, ओ सी टी ए, यहाँ पर 4 लेटर हैं, यहाँ पर एक ज़्यादा लेटर है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 4 लेटर हैं, यहाँ पर 5 लेटर हैं. तो जब मैं 5 ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूँगा तो मैं ऊपर कितने ऑर्बिटल्स ले जा रहा हूँ? 2. ठीक है, 2, या तो मैं 2 ऊपर ले जाऊँगा या फिर 3 ऑर्बिटल्स को ऊपर ले जाऊँगा. तो अगर मेरे पास छोटा वर्ड है तो मैं 2 ऑर्बिटल्स को ऊपर ले जाऊंगा, और अगर मेरे पास बड़ा वर्ड है उसके पास एक लेटर ज़्यादा है, अगर एक लेटर ज़्यादा है तो एक ऑर्बिटल को और ऊपर ले जाइए. सो दैट इज द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. तो आपको बहुत इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में 2 ऊपर जाएंगे किस में 3 ऊपर जाएंगे, सिर्फ उनकी स्पेलिंग पर जाइए एंड दैट विल बी क्लियर. सो दिस इज अबाउट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस and crystal field splitting, crystal field theory. Now come to its limitations. अब हम बात करें लिमिटेशंस की. तो इस थ्योरी ने जहां से स्टार्टिंग की, जहां से शुरुआत की, वही कुछ हमें गलत लगा. क्या गलत लगा? द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द लिगैंड वाज कंसीडर्ड एज आयनिक बॉन्ड. ये आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया एंड दैट वाज अ करेक्ट, दैट वाज एन इनकरेक्ट पॉइंट. इसको तो आयनिक बॉन्ड हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. लिगैंड जो है वो हमेशा इसके साथ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है टुवर्ड्स द मेटल, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है. दैट वाज द लिमिटेशन. एंड द सेकंड लिमिटेशन ऑफ दिस CFT वाज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स. देखिए वी नो द लिगेंड्स वर कंसीडर्ड एज आयंस इन केस ऑफ CFT. इसने इनको लिगेंड्स को क्या माना था? आयंस माना था. अब मैं ऐसा पूछूं कि इन द पीरियोडिक टेबल जो नेगेटिव आयंस हैं वो सबसे अच्छे कौन से हैं? नेगेटिव आयंस कहाँ प्लेस्ड होते हैं? इन द राइट हैंड साइड.
इन द टॉप ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन से होते हैं वो? दीज आर F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सब होते हैं। और अब ये सबसे अच्छे नेगेटिव आयंस हैं, सो जो दीज लिगेंड मस्ट बी, ये कैसे होने चाहिए थे? ये सबसे अच्छे लिगेंड्स होने चाहिए थे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने चाहिए थे। बट इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यू कैन सी दीज all these anions they were in the last of the spectrochemical series, वो सब इनमें लास्ट में रखे गए थे। why? that was not explained by this CFT, and all these limitations were overcome by other two theories, LFT and molecular orbital theory, ligand field theory and MOT। तो वो but these are not in our syllabus। so इस basis पर आपने जो questions इसमें पूछे गए हैं वो आपने solve करने हैं।